Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 25 और 26 दिसंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं पुराने। जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूरन ग्लोबल मोस्ट वैल्यूएबल 500 फर्म्स की, मतलब पूरी दुनिया की जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें से 20 कंपनियां इंडिया की हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए। और इस 20 में से भी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक, एकदम सिंपल तरीके से याद रखेंगे। टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स ग्लोबली में से अब टॉप पर कौन है? वो है एप्पल। सऊदी अरामको बीच में आ गया था, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। फिर अगर मैं बात करूं इंडियन कंपनीज कितनी हैं? 20। इंडियन में से भी टॉप किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट पे आते हैं मेघालय। अगर हम बात करें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए किस स्टेट को सम्मानित किया गया, वो थी मेघालय। टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये आपके लंग्स में इफेक्ट करता है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इसी डिजीज की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इवन पंचायती राज जो आपका सिस्टम होता है वहाँ पे उन्होंने भी पूरे सेटअप किया कि हम रूरल एरियाज में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को या जिस आदमी को भी आपकी टीबी होती है उसको एकदम सेक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फिर बात करते हैं इसरो की। देखो, इसरो किस कंट्री की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? सबको पता है, इंडिया की। लेकिन अगर अब मैं बात करूं चाइना की, CNS से। फिर रॉसकॉस्मॉस, ये किसकी है? ये आपकी रशिया की है। जाक्सा किसकी है? जापान की है। नासा हम जानते हैं किसकी है? USA की है। SpaceX किसकी है? ये आपकी इलॉन मस्क की, ये भी US बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये एक प्राइवेट फर्म है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर इसरो के बारे में याद रखेंगे कि एस सोमनाथ यहाँ के चेयरपर्सन है, बेंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है, और इसरो के द्वारा ही अभी एक हाइपरसोनिक व्हीकल को ट्राई किया गया। अब हाइपरसोनिक क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है ना, तो हम उसको कहते हैं 1 मैक। 1 मैक की स्पीड से ज़्यादा कोई ट्रैवल करेगा या स्पीड की साउंड से ज़्यादा तेज़ कोई ट्रैवल करेगा, उसको बोलते हैं सुपर सोनिक।
और कोई भी ऑब्जेक्ट 5 मैक मतलब 5 टाइम ऑफ साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा तो हम उसको क्या कह देते हैं, हाइपरसोनिक। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर्ब्स की बात करते हैं। फॉर्ब्स ने अभी वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की एक लिस्ट रिलीज की, जिसमें बताया कि ये है 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड। उसमें से 3 इंडियन थी। पहली थी निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरी है नायका के फाउंडर फाल्गुनी नैयर, और तीसरी आ जाती है हमारी सेबी की चेयरपर्सन मधावी पुरी बख्ची। तो ये 3 याद रखेंगे इंपॉर्टेंट नेम्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यहीं पे अगर मैं पूछूं इलॉन मस्क की, देखो इलॉन मस्क किसको ऑन करता है, स्पेसएक्स को, टेस्ला को, न्यूरोलिंक को, बोरिंग कंपनी को, स्टारलिंक को, और अब ये ट्विटर के भी ओनर बन गया है इलॉन मस्क। ठीक है, और याद रखेंगे, लेकिन अभी क्या है, इलॉन मस्क बोल रहा है कि हम भाई अपनी सीईओ की पोजीशन छोड़ देंगे ट्विटर की, क्योंकि उन्होंने पोल कराया। अभी कोई फाइनलाइज न्यूज़ नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो इलॉन मस्क की ये कंपनियां सारी, तो इलॉन मस्क अभी देखो, और एक ही चीज़ हमने देखी, स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है, ये एक कम्युनिकेशन बेस्ड सेट या फिर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो अभी न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसी की एक राइवल कंपनी है वन वेब, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है। ये भी आपका सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अभी स्पेसएक्स ने 40 सैटेलाइट वन वेब की, जो कि यूके की कंपनी है, स्पेस में भेजी। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, आईएफआर। किसके द्वारा होस्ट कराया गया था, बांग्लादेश नेवी के द्वारा। और कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश में ही हुआ था। ये भी याद रखेंगे। ठीक, फिर याद रखना है कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 3 इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया। वो है आईएनएस कोची, आईएनएस कारावती और आईएनएस सुमेधा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर आ जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। किन के बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, एस रामानुजन। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, काफ़ी रियॉन्ड मैथमेटिशियन हैं। और याद रखेंगे, ये जो आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे स्टार्ट किसके की द्वारा किया गया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्होंने 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी घोषित किया गया था। और जो पहली बार इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम फर्स्ट नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व करेंगे, 22 दिसंबर 2012 को। ठीक, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा। ये इन्होंने अभी एनडीए क्लियर किया, और एनडीए क्लियर करके ये कंट्री की पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर जेट पायलट बनने वाली है। ठीक है, आई रिपीट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो इंडिया की पहली फीमेल मुस्लिम या फिर पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर पायलट जेट फीमेल फाइटर पायलट कौन बनने वाली हैं, वो है सानिया मिर्जा। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी रिसेंटली इंडिया की किस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द गृहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 के दौरान, तो वो है UIDAI का हेडक्वार्टर बिल्डिंग। ये आपकी बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड दिया गया, इनको याद रखेंगे। और ग्रीन से क्या समझते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, मतलब ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन है इसका वो बहुत मिनिमल है। नेक्स्ट, किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आ जाता है न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला जी। इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है AERB का, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड के जो नए चेयरपर्सन बने हैं वो कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला जी। फिर आ जाते हैं, यूपी को हम जानते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई। और यूपी में ही अगर आप देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की बात की गई कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना स्पोर्ट होगा। तो ऐसी अभी बात याद रखेंगे कि यूपी में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की बात की गई, जो कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की मदद से बनाया जाएगा। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया टू साइन एन MOU टू बिल्ड ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं IMS मॉर्मुगांव की। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कि कमीशन किया गया था इंडियन
नेवी में। नेक्स्ट आ जाता है फीफा वर्ल्ड कप की। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 की बात करें, कहाँ पर होगा? कतर में होगा। कतर में हुआ। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। तीसरी बार अर्जेंटीना ने जीता और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन है? लायनल मेसी। फ्रांस को फाइनल में हरा के इन्होंने ये जीता है टाइटल। फिर आ जाते हैं इंडियन वीमेन हॉकी टीम। इन्होंने FIH हॉकी वीमेंस नेशन कप को जीत लिया, जो कि स्पेन में हुआ था, 2022 में हुआ था, वेलेंसिया स्पेन में हुआ था। और याद रखेंगे इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने स्पेन की वीमेन हॉकी टीम को ही फाइनल में हरा के ये टाइटल जीता है। फिर आ जाते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कंट्री को वीमेन राइट्स बॉडी से हटा दिया गया है। वो कौन सी कंट्री रहेगी? वो है ईरान। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे रिवीजन हो गई खत्म, डन एंड डस्टेड। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका काम क्या रहेगा? नोट्स बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर चीज़ें बताऊंगा, उनका नोट ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन है यूनियन कैबिनेट के, इनके द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया कि जो हम आर्म फोर्सेस की पेंशन है और जो उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, जो अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम आती है, उसकी रिवीजन की जाएगी। उसकी रिवीजन को अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जुलाई 2019 से लेके आपका 30 जून 2022 तक। ठीक, फिर इसी में याद रखेंगे, इसी के लिए जो हमें पहले देखा था कि जो डियरनेस रिलीफ था, जो DA था आपका, वो भी रोक दिया गया था। तो मे बी इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक काफ़ी राहत मिल सकती है कि उनका जो पैसा बाकायदा बचा हुआ है, जब कोविड लगा था, लॉकडाउन आया था, तो आपने देखा था जो DA था, डियरनेस अलाउंस था, वो लोगों का रोक दिया गया था, वो कम कर दिया गया था, उस टाइम पे बढ़ा भी नहीं था वो। तो वो जो एरियर्स बचा हुआ है वो अब मिलने की यहाँ पे बात की गई है सरकार के द्वारा, कि यहाँ पे उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ये इस पे जो रिवीजन है उसको अप्रूव कर दिया है। देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो एरियर्स भी लोगों को, सरकारी लोगों को अब मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी की। इन्होंने खेलो इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो खेलो इंडिया डैशबोर्ड है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जो कि अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर यहीं पे हेल्प करेगा एथलीट्स को इन लोकेटिंग द नियरेस्ट फैसिलिटी वेयर द स्पोर्ट ट्रेनिंग इज इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन अवेलेबल। मतलब जहाँ पे भी आप वो पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलते हैं, वो या फिर कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलते हैं, उसके लिए जो ट्रेनिंग है, वो कोचिंग है, कहाँ पर अवेलेबल है, इसके बारे में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहीं पर आपका स्टैटिकल डाटा फॉर खेलो इंडिया स्कीम एंड खेलो इंडिया इवेंट्स के बारे में भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं PV सिंधु। PV सिंधु किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन। तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया फोर्ब्स के द्वारा, जो कि है हाईएस्ट पेड एथलीट, वो भी फीमेल। आई रिपीट, फोर्ब्स के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2022 का। इसमें जो इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु हैं, ये 12th पोजीशन पे है। मतलब ये वो 12th फीमेल, हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट है इन द वर्ल्ड। टॉप पर यहाँ पर कौन रहता है? हम देख सकते हैं नाओमी ओसाका, ये जापान की है, टेनिस खेलती हैं। इनकी जो अर्निंग थी वो थी $51.1 मिलियन। सेकंड पे सेरेना विलियम्स, ये भी टेनिस से रिलेट करती हैं और $41.3 मिलियन इनकी अर्निंग थी। और 12th नंबर पे कौन आ गया? PV सिंधु। इनकी बात करें तो इनकी अर्निंग थी PV सिंधु की विद अ टोटल ऑफ $7.1 मिलियन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए PV सिंधु, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? हैदराबाद तेलंगाना। और हैदराबाद तेलंगाना को ही हम क्या बोलते हैं? यहीं पे क्या लॉन्च हुआ था? टेक्नोलॉजी हब 2.0, ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया जा सके। नेक्स्ट IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IFC के द्वारा भी ये न्यूज़ में क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि IFC जो कि हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये एक किसका आर्म है या किसका ग्रुप है? इसकी या फिर इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। तो याद रखेंगे IFC के द्वारा अभी $400 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड किया गया HDFC को, ताकि जो ग्रीन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड आपके जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किया जा सके इन इंडिया।
ठीक है, आई रिपीट, ये जो नई इन्वेस्टमेंट है $400 मिलियन की, ये हेल्प करेगी इन ब्रिजिंग द अर्बन हाउसिंग गैप एंड इम्प्रूव द एक्सेस टू क्लाइमेट स्मार्ट अफोर्डेबल होम्स इन इंडिया। ऑलराइट, याद रखेंगे इसको। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं आईएफसी की, हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का, ये आपका वॉशिंगटन डीसी में ही रहेगा। कब स्टैब्लिश किया गया था आईएफसी? 1944 में। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएफसी के, वो कौन है? मख्तार डायोब। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो भी न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस में ही आपके ओलंपिक गेम्स होंगे 2022 में। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी, कीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। अब आ जाते हैं आईएमएफ पे। आईएमएफ ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया ना, अभी जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, फिस्कल ईयर 23, जो हम कहते हैं 2022 से लेके 2023 तक, इन्होंने इसमें प्रोजेक्ट की कि करंट ईयर में 6.8% से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर बात करें या फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर 24 की बात करें, जो है 2023 से लेके 2024 तक, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की 6.1%। एंड पूरी दुनिया में जो रिसेशन का खतरा है वो मंडरा रहा है। इवन काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी ये डाटा प्रोवाइड करती हैं, वो सब ये बोल रही हैं, इवन वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक भी ये बोल रहे हैं कि इन द फ्यूचर देयर कैन बी अ ह्यूज रिसेशन, दैट जो हमने अभी तक कभी भी नहीं देखा होगा, बहुत बड़ा रिसेशन हो सकता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं एक सेफ साइड पे रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डाटा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर थलालपिल प्रदीप। इन्होंने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से इनको सम्मानित करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कौन है थलालपिल प्रदीप? ये एक इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। इनको विन फ्यूचर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? हनोई, वियतनाम में। फिर दूसरी चीज, इनको क्यों इससे सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया, जिसकी मदद से हम पानी में से, ग्राउंड वाटर में से आर्सेनिक और जो अदर हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब जो हमारा ग्राउंड वाटर हो गया वो भी कहीं ना कहीं एक पीने लायक और क्लीन वाटर हो गया, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया। और चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशंस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नैनो मटेरियल को यूज़ करके पानी को अफोर्डेबल और सेफ बनाने के लिए इसी फील्ड में इनको पद्मा श्री से भी सम्मानित किया गया था 2020 में। इन्हीं को निक्की एशिया प्राइज 2020 से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 25th एडिशन था निक्केई एशिया प्राइज का। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। अगर मैं बात करूं विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज की, ये 20 दिसंबर 2022 को, जो कि इंटरनेशनल सॉलिडरिटी डे है, उस दिन इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं UIDAI। इनको DSCI का एक्सीलेंस अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में UIDAI, हमने अभी देखा था इनके हेडक्वार्टर को बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और अब UIDAI को ही DSCI के द्वारा, जो कि है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, अभी एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया अंडर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर कैटेगरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज को जीता फॉर 2021-22। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे कि किन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज को जीता फॉर 2021-22। वो रहेंगे सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार। ठीक, ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था विद एन एनुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑनर लिटरेरीज एंड वेरियस सोशल अकॉम्प्लिशमेंट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वस्ति सिंह की। ये एक साइकिलिस्ट हैं और इनको 30वां एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एकलव्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है कि जो यंग
स्पोर्ट्स टैलेंट है उनको एंकरेज करने के लिए, ताकि वो आगे और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें। इसीलिए यंग साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23 दिसंबर 2022 को सम्मानित किया गया था और इसके साथ इनको एक साइटेशन ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का कैश प्राइज प्रोवाइड दिया गया था बाय द इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा। इनको इलेक्ट किया गया एज द फेलो ऑफ यूनेस्को TWAS। यूनेस्को TWAS क्या है? TWAS है द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज। इसका हेडक्वार्टर इटली में रहेगा एंड ये वर्क करता है टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ साइंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा को अभी इलेक्ट किया गया टू हैज बीन इलेक्टेड एज द फेलोशिप ऑफ यूनेस्को TWAS। इनके बारे में देखें तो ये कौन है? अभी वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के प्रोफेसर के.एस. रंगप्पा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इनकी फेलोशिप विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 एंड Rangappa being the fellow, now he can nominate a young scientist from the state universities for getting the research grants। मतलब जो लोगों को रिसर्च करने के लिए पैसा मिलता है, ग्रांट मिलता है, वो भी ये आगे अपने स्टेट रिसर्चर्स को फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटीज, यंग साइंटिस्ट को वो ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाके रिसर्च कीजिए और उसके लिए सूटेबल अमाउंट ऑफ मनी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ही इज लिस्टेड अमंग द टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट सिंस 2019। अगर हम TWAS की बात करें तो ये 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें इनिशियली 42 इलेक्टेड मेंबर्स थे एंड 9 उसमें नोबेल लॉरेट्स थे और अब यहाँ पे 1296 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फेलो मेंबर्स हैं और 11 नोबेल लॉरेट्स हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद H.A. हुसैन रहेंगे, सेक्रेटरी जनरल लुइस डेविड वोविच रहेंगे, हेडक्वार्टर इटली में है और कब इस्टेब्लिश किया गया? ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था 1985 में, लेकिन इसको इस्टेब्लिश कर लिया गया था 1983 में। नेक्स्ट बात करते हैं PN वासुदेवन। ही विल कंटिन्यू टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये MD एंड CEO कंटिन्यू रहेंगे। बोर्ड के द्वारा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये डिसीजन लिया गया है और आने वाले 3 साल तक ये इस पोजीशन पे बने रहेंगे। इनका जो पोजीशन है विल एक्सपायर, करंट टर्म जो है इनका एक्सपायर होगा 22 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है सितवेनी रबुका। ये अभी वापस 12वीं प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कहाँ के? फिजी के। इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा, इनको नॉमिनेट किया गया टू बी द टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन। किनके द्वारा? जो बाइडेन के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अगर मैं बात करूं रिचर्ड वर्मा की, ये इंडियन अमेरिकन लॉयर डिप्लोमेट हैं। ही विल बी द डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। रिचर्ड वर्मा अभी करंटली चीफ लीगल ऑफिसर है एंड हेड ऑफ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी एट मास्टरकार्ड एंड प्रायर टू हिज टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन इन द स्टेट डिपार्टमेंट ही हैज सर्व्ड एज अ फॉर्मर US एम्बेसडर टू इंडिया फ्रॉम 16 जनवरी 2015 टू 20 जनवरी 2017। नेक्स्ट बात करते हैं JNCASR। ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बेंगलोर कर्नाटका में है और इसने पहली बार शो किया है कि फर्स्ट टाइम शो किया कि जो इंफ्रारेड लाइट एमिशंस है ना, इसके एब्जॉर्प्शन को हम इसके मॉडरेशन को और इसके रिलीज करना, मतलब आपके एमिट करना, इसको और बेटर कर सकते हैं और इसके बेटरमेंट की मदद से यही टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। आई रिपीट, रिसर्चर्स ऑफ द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, इन्होंने पहली बार शो किया इंफ्रारेड लाइट एमिशंस एंड एब्जॉर्प्शंस विद GAN, जो कि एक न्यू आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर है फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन। ये टेक्नोलॉजी आपके डिफेंस में, इमेजिंग, सेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसरो अभी US इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करेगा ऑन देयर चंद्रयान 3 मिशन। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन पे भी इन्होंने अमेरिका के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी किया था और अब चंद्रयान 3 में भी ये कैरी करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हम बात करते हैं इंग्लैंड के 1966 वर्ल्ड कप विनर जॉर्ज कोहेन। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे। 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे।
नेक्स्ट है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह। बीरेन सिंह के द्वारा अभी जो ILP सिस्टम था, इनर लाइन परमिट सिस्टम था, जो कि मणिपुर में जो लोग एंटर करते हैं उनके बारे में रजिस्ट्रेशन करना, उनके बारे में प्रॉपर चेक रखना कि हमारे स्टेट में अभी कौन कौन एंटर किया है, ये था आपका इनर लाइन परमिट। तो ये ILP सिस्टम को अभी अपग्रेड करके फिर से लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के द्वारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये इनर लाइन परमिट सिस्टम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मणिपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। एज अ पोर्टल है, तो ये एक वेबसाइट है, तो इस पोर्टल पे आप कोई भी जो लोग दूसरे स्टेशन से या बाहर से मणिपुर की स्टेट से वहाँ पर आना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पे परमिशन वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड पेंशनर फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया खेलो इंडिया डैशबोर्ड को। फिर PV सिंधु की बात करें, ये फोर्ब्स की जो वर्ल्ड की हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट्स हैं उसमें 12वें नंबर पे आई। फिर और ये ओनली इंडियन एंड बैडमिंटन प्लेयर थी जो कि टॉप 25 में थी। फिर IFC ने अभी $400 मिलियन का लोन दिया HDFC को, ताकि जो ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है और लोगों को इंडिया में बेटर अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किए जा सके, ग्रीन अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किए जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया इंडिया टू बी ग्रोइंग एट 6.8% इन द फिस्कल ईयर करंटली, जो कि है फिस्कल ईयर 23, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इंडिया विल बी ग्रोइंग एट 6.1%। इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर थलालपील प्रदीप, इन्होंने रिसीव किया विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 को। फिर UIDAI को अभी DSCI का एक्सीलेंस अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 को जीता। साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह की बात करें, इनको 30वें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करा गया, और ये यंग स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है ताकि वो आगे और बेटर परफॉर्म कर सकें इन देयर स्पोर्ट्स। प्रोफेसर KS रंगप्पा, इनको इलेक्ट किया गया एज द फेलो ऑफ यूनेस्को TWAS। PN वासुदेवन विल कंटिन्यू टू बी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। सितवेनी रबुका, ही हैज रिटर्न एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा, इनको नॉमिनेट किया गया टू द टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन। JNCASR रिसर्चर शोज फर्स्ट टाइम इंफ्रारेड लाइट एमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन विद GAN, जो कि एक न्यू आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर है। इसरो टू कैरी US इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड द फोर्थकमिंग चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 2 पे भी ले गए थे और अब चंद्रयान 3 पे भी ले जाएंगे। इंग्लैंड के 1966 वर्ल्ड कप विनर जॉर्ज कोहेन, इनका निधन हो गया है और ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर, और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ILP सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया। इनर लाइन परमिट के अपग्रेडेड सिस्टम पोर्टल को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे होमवर्क क्वेश्चंस, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क क्वेश्चंस पे। पहला, इनकोवैक, ये एक अभी इंटरनेशनल बूस्टर डोज थी कोविड की, जो कि किसके द्वारा अप्रूव की गई थी और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी, दोनों चीज़ बताओ। फिर आ जाता है विच इंस्टीट्यूशन वन द DSCI AISS अवार्ड फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। अभी हमने पढ़ा है ये जस्ट, ठीक है, ध्यान दिया होगा तो अभी हमने पढ़ा है। फिर इसी के साथ साथ बताओ ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड किसको मिला, सेम आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया $400 मिलियन लोन टू विच कंपनी इन इंडिया। ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ये क्या था, ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडियंस को $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया IFC के द्वारा। नेक्स्ट, फोर्थ है हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन स्क्वाड फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए किनको कैप्टन बनाया गया, बताओ जरा। नेक्स्ट, विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके 5 होमवर्क रहेंगे। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया, होमवर्क क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें,
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा हमारे सेशन पे, क्या आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम डेली अपलोड करते हैं, जिससे आपके जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट डेली करंट अफेयर्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन मान लो कोई इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन टॉपिक वाइज में क्या होता है, पूरे महीने के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, नेशनल अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे आपके इजीली यहाँ पे रिवाइज हो जाते हैं डेली बेसिस पे। तो ये सेशन भी ज़रूर देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी और वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करनी है तो डेली करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल अफेयर्स क्लाउड पे मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ साथ हमारी एक एप्लीकेशन भी है कैरियर्स क्लाउड्स के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको सारा PDF हिंदी, इंग्लिश, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को हिंदी में क्विज अटेम्प्ट करनी है वो हिंदी में कीजिए, जिनको इंग्लिश में क्विज अटेम्प्ट करनी है वो अपना इंग्लिश में भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए उनको कोई बैरियर की ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा सेशन रहता है। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट्स भी बनाते हैं और वो भी रिवाइज करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पर अगर आपका फोकस रहता है ना, तो आप देखेंगे जो आपकी प्रिपरेशन है ना वो टॉप नॉच रहेगी। कोई भी करंट अफेयर आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एग्जाम में। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे आपको अगर कोई भी यहाँ पे टॉपिक समझ नहीं आता ना, जो हमने इतने सारे कंटेंट किया, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तो आप नीचे पूछ भी सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो को आज के टाइम पे जो यूट्यूब हमें प्रोवाइड करता है ना, वो होता है कमेंट सेक्शन। एंड मैं देखता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ टॉपिक्स दिए थे जिस पे आप डिस्कशन करें, लेकिन बच्चे करते ही नहीं है, आप लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं। देखो, आपका कोई भी डाउट होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, एंड आई विल मेक श्योर कोई बच्चा है ना किसी को आपका कमेंट पे रिप्लाई आएगा ही आएगा। आप आपस में भी देखिए ना, तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग क्या होती है कि एक हम लोग, मान लो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 से 4000 लोग हमारी वीडियोस डेली देखते हैं, तो 3-4 हज़ार लोग एक दूसरे की क्या मदद नहीं कर सकते? किसी को मान लो आज की टॉपिक से नहीं, कोई और टॉपिक पे समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट कर दो। आप लोग कमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे जिसकी की कोई भी मदद मांगी किसी ने, कोई टॉपिक समझना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं उनको। वहाँ पर आप डिस्कशन भी शुरू कर सकते हैं। आप वहाँ पे चीज़ों पे डिस्कस कीजिए कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, क्या ये ठीक है या नहीं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर नहीं है। देखो, आपको कमेंट करना है, आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चे जब हमारे साथ जुड़े होते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो और अच्छे से जुड़े, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, उनको कभी ऐसा ना लगे, अकेला फील नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए ये चीज़ मेरे को कहाँ समझ आएगी। कुछ लोग अभी इतना टेक स्मार्ट नहीं है कि वो अपना गूगल करके चीज़ों को समझ सके, चीज़ों को पढ़ सके। तो आपको ऐसे टाइम पे लोगों की मदद करनी है ताकि एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ सके। देखो, अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर साथ में आगे बढ़ोगे सबसे बढ़िया चीज़ वो होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.